My name is Nisha Vidyarthi. Currently, I am a posted Assistant Director, Sports Authority of India in Hyderabad. I am a nodal officer for Telangana. So my job basically includes implementing central government schemes at state level. मतलब we have to monitor, implement और जो coordination होता है with the state, we have to take care of all these things. Plus the most important thing is that we have to take care कि जो sports है, because I am from sports authority, तो जो sports है ground level पे how well it is flourishing and giving benefits to the ground level जो हमारे athletes हैं who are not getting that level of that level of exposure. They are getting the relevant equipment, they are getting relevant information and everything, right? Okay, so this is what I am doing right now. Regarding my journey, I'll talk in the beginning. Just after this, I would like to mention that I want, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स का या बहुत सारे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, जिन्होंने इसके थ्रू जॉब अपनी हासिल की है, उन लोगों से आपने इंटरेक्शन किया होगा. सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, राइट? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. देयर विल बी मेनी टॉपर्स जिसका आप लोग बात सुनेंगे. तो मेरी माय स्ट्रेटेजी, माय जर्नी हैज़ आल्सो बीन वेरी डिफरेंट. तो फिर आई डोंट नो हाउ मच इट विल बेनिफिट यू और नॉट. आई विल शेयर इट, बट मोर देन दैट आई वांट all of you to share what your doubts are, to share what you are facing, so that I can help there, right? तो आई कीप सीइंग योर मैसेजेस. आपके जो चैट बॉक्स में आई कीप लुकिंग एट वॉट एवर आई फील कि मुझे डिस्कस करना चाहिए. आई डेफिनेटली ब्रिंग इट अप एंड टॉक टू यू. ठीक है, तो कीप आस्किंग योर डाउट्स. आई हैव आई एम योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, तो all right, so I'll tell you, मैंने just after my college I started to think that I will become IAS officer, because when I was a kid I was told that becoming an IAS officer is a very prestigious thing. I didn't know what is IAS officer, what he or she has to do. It's just that for the sake of having the title of IAS, I started preparing after my college. Then after college, I didn't prepare. First जो मेरा attempt था वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं दिया था. I gave it somehow, and after through the preparation, I'll tell you, I found my reason to become a civil servant. It was not in the beginning that I knew why I want to become a civil servant, but it is through the preparation itself that I got to know for myself what I have in this service and what I can give to others. तो फिर it was my fourth, I have given fourth attempt. In my fourth attempt I got this service. एंड दिस इस सर्विस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी. आई वांट टू क्लियर इट दैट आई डिडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. व्हाट हैपेंस इन यूपीएससी दैट आई हैव गिवन इंटरव्यू, but in final list I got less, like 4 marks less to make it for to the final list. So what happens, Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, they directly recruit the people. It's right. So it is equivalent to civil services level, grade pay, everything. All the things are equivalent to civil servants. But ये है कि लोगों को इतना idea नहीं है इस चीज़ का. But you can always ask me out whatever you want to know. And it's a very nice job. In fact, जब आप ground level पे बात करते हैं, पे देखते हैं चीज़ों को, हाउ दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यू एक्चुअली गॉट टू नो व्हाट द एक्चुअल गवर्नमेंट इज एंड वेयर यू कैन पुट और वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट. तो अगर आपकी डाउट इस रिगार्डिंग है कि गवर्नमेंट में एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, यू कैन आल्सो ब्रिंग दैट टू मी सो दैट आई कैन टेल यू, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि गवर्नमेंट में एक्चुअली कैसे होता है. क्योंकि कई बार हम लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं कुछ अलग चीज़ों को सोच के कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें होगा, पर एक्सपेक्टेशन से जब रियलिटी थोड़ी अलग होती है तो हम लोगों को लगता है कि वॉज इट रियली माई कप ऑफ टी और नॉट, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट दिस सर्विस एक्चुअली इज, रादर देन थिंकिंग कि आप लोग अपने हिसाब से कुछ ऐसा सोचो कि सर्विस में मुझे ये मिलेगा या जो भी मिलेगा आप लोगों को, उससे आपको हमेशा एक रियलिटी के तौर पे सोचना है. ठीक है, सो coming, so my I started as a just for the sake of becoming a civil servant, but eventually I got to know why I want to be in the service. I gave 4 attempts. Initially first attempt was just after college, didn't prepare and didn't make it. In second attempt I wrote mails, but because that is COVID time and a lot of things were happening, we all know what we went through. So that was the time when I didn't go for interview.
बट ऐसा हुआ था कि आफ्टर नॉट क्लियरिंग मीन्स, आफ्टर नॉट गोइंग टू इंटरव्यू, आई थॉट दैट आई शुड क्विट इट. इट वॉज अ वेरी अर्ली डिसीजन फॉर मी टू से कि अभी मैं नहीं करती हूँ प्रिपरेशन, बिकॉज आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू. ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में यू विल नॉट क्लियर एंड यू विल फील कि अब मैं छोड़ देती हूँ, बिकॉज प्रिपरेशन इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा. वी रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस प्रिपरेशन. तो हमें लगता है छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं. मैंने भी यही सोचा था. आई मूव्ड टू अ स्टार्टअप. प्राइवेट सेक्टर में मैंने एक स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया था. बट एक साल के बाद, जैसे एक साल के बाद हमारा वो आते हैं, हमारे मार्क्स आते हैं, राइट. तो जब मेरे मार्क्स आए थे तो आई मिस्ड इंटरव्यू बाय 3 मार्क्स. तो तब आई गॉट टू नो, आई रियलाइज्ड दैट एक्चुअली आई शुड हैव नॉट लेफ्ट इट ऑल टुगेदर. आई शुड हैव मे बी आई शुड मेक अनदर अटेम्प्ट. तो बस पर उस टाइम पे मैंने अपना एक साल थोड़ा वेस्ट कर दिया था. बिकॉज वेस्ट तो नहीं कहूंगी, इट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई लाइफ जर्नी, टू माई करियर. बट हाँ, यूपीएससी से थोड़ा अलग हो गया था. आई अटेम्प्टेड, मैंने थर्ड अटेम्प्ट उस टाइम पे दिया, क्योंकि अगेन कोविड की वजह से प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था टू सितंबर अक्टूबर तक के लिए. तो दैट इज वाई मैंने अगेन अटेम्प्ट दिया. आई डेंट क्लियर इट बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू यूपीएससी. Then I realized I should at least give one more attempt. In fourth attempt that which I gave, I got this service. So that is why I would want to tell you that you should at least think that you are going to give 3 to 4 attempts. Okay. How I will tell you. I'm not saying कि 3 से 4 साल आपको बिल्कुल इसके अंदर अपना इन्वॉल्व करना है. ठीक है. तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रेटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब स्टार्ट करना है अपना यूपीएससी प्रिपरेशन, 2 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट थिंग, दैट दिस प्रिपरेशन एटलीस्ट नीड्स 1.5 ईयर. उसके 1.5 ईयर से पहले आप ऐसा मत सोचो कि आपको क्लियर करना है. एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग क्लियर करते हैं, दैट इज फाइन. बट कीप इन माइंड दैट दोज पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर्स. 1.5 ईयर्स से वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, इसीलिए दे कुड एक्चुअली मेक इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, राइट. बट दिस प्रिपरेशन एटलीस्ट रिक्वायर्स 1.5 ईयर्स का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए. ठीक है. जब भी आप स्टार्ट करते हैं, अभी हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, बट वेर एवर यू आर, यू हैव टू एक्चुअली have the you have to basically memorize the यूपीएससी सिलेबस. जो आपका GS1 GS2 GS3 GS4 जो भी आपका ऑप्शनल होता है, उसको आप मेमोराइज कर लो. यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड कि व्हाट आर द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट करो. यूपीएससी के पहले 10 दिन तो आप यूपीएससी के सिलेबस को ही गो थ्रू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो. फॉर एग्जांपल, हमारी जो यूपीएससी सिलेबस है, अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग की यूपीएससी का सिलेबस अभी मेरे सामने ओपन है. जैसे GS2 है, राइट. उसके अंदर देयर आर कीवर्ड्स: गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जस्टिस, राइट. तो फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स. आपको क्या करना है, अपने स्टार्टिंग के कुछ डेज में, 10 डेज में आपको ये कीवर्ड्स को सर्च करना है. यू हैव टू keep searching those keywords. You have to keep knowing about these keywords. क्यों keywords का मतलब क्या है, what UPSC wants from you to learn if through this preparation. जब आप 10 दिन एटलीस्ट अपने यूपीएससी सिलेबस में अपने इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद यू हैव टू कम टू यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं. क्वेश्चंस को देखो, पेपर्स को देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट. थोड़े से टॉपर्स की वीडियोस देखो. सिर्फ आपको नेट सर्फिंग ही करनी है. आपको सीधे कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, कुछ नहीं करना है, किसी टॉपर का स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना शुरू करना है. आपको सिर्फ नेट सर्फ करना है. आप यूपीएससी का सिलेबस देखो, पुराने पेपर्स देखो, ऑल दीज थिंग्स, राइट. अपना ऑप्शनल के चीज़ों के बारे में, अगर आपको ऑप्शनल का, इफ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट ऑप्शनल, हाउ टू चूज ऑल ऑफ दैट, देन आई विल डिस्कस. अदरवाइज आई विल कीप ऑन द जनरल डिस्कशन. ठीक है. अ लॉट ऑफ people are asking plan B कब से रखना चाहिए. See, plan B has to be always there. I'll tell you that UPSC को कुछ लोग सबका अपना तरीका होता है, बट कुछ लोग UPSC को ऐसे लेते हैं कि it's a life and death kind of a thing. It's not. You have to keep your goal not UPSC, but what after UPSC, है ना. जैसे कि हर किसी का एक गोल होता है. मेरा ये था, मेरे पास 3 चीजें थी इन्वेस्ट करने के लिए, कि एक एजुकेशन सेक्टर था, एक पॉवर्टी था, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था. 3 चीजों के बारे में मेरा एक ऐसा माइंड में रहता था कि मुझे ये 3 चीजें चेंज करनी है. पॉवर्टी के बारे में मैं पूरा फुल प्रूफ प्लान मैंने बनाकर रखा था कि व्हेन आई एंटर सिविल सर्विसेज आई विल डू दिस दिस दिस. एजुकेशन सेक्टर के बारे में आई हैड प्लान्स. तो I was not stuck to that. I will only when I will become a civil servant, then I will reach these goals. You have to keep your goals thoda sa broad. It's your life. UPSC is not your life. UPSC is an important part of your life, right.
तो आपको प्लान बी हमेशा रखना है. यू शुड नॉट स्टॉप लिविंग योर लाइफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. आई हैव सीन my own friends, I have seen who have literally spent like 6-7 years. Now they discuss ki what now, where we have to go, है ना. You don't have to get confused, get oblivious due to all these pressure scenarios, right? Always have plan B, always think about your life. आपको स्ट्रेटेजी में 1.5 ईयर्स देने हैं, जिसमें आपको सब कुछ छोड़ छाड़, मैंने भी छोड़ छाड़ के सब कुछ आइसोलेट होके इंस्टा फेसबुक सब कुछ डिलीट करके अपने आप को कमरे में बंद करके 1.5 साल मैंने प्रिपरेशन की थी. वो आपको भी करनी है, वो मैं सबको रिकमेंड करूंगी. 1.5 साल आपको पूरा अच्छे से देना है. आपको अपने नोट्स, अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यू डोंट नो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. उतना इसी यूपीएससी में लगेगा. बट 1.5 साल के बाद आपको अपने आप को इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपको बिल्कुल इसमें फेल होना शुरू हो जाओ, राइट. यू जस्ट हैव टू कीप अप विद योर लाइफ. जैसे कि मैंने अपने स्टार्टअप करा था. मैंने उसके बाद एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ मेंटरिंग, एज अ मेंटरशिप भी मैंने विजन आईएएस में काम किया था. उसके अलावा आई यूज्ड टू राइट अ बुक, आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज, आई यूज्ड टू लर्न डांस फॉर्म. तो मैं कुछ ना कुछ आई नेवर लेट माई लाइफ गो ऑफ माई हैंड्स. तो आई विल टेल एवरीवन टू नॉट लेट लाइफ ट्रैवल. डू, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 2022 में, just after giving interview I went to a trip to South India for 25 days because I loved traveling. So for all of you I want to tell ki you never have to drop on your life. यूपीएससी के लिए 1.5 साल दो, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो. अगर नहीं जैसे क्लियर होता है तो फिर हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरा 1.5 साल के बाद, जब इफ आई हैव इन्वेस्टेड 4 years, तो उसके बाद आई कंटिन्यूड ऑन माई लाइफ. बट क्योंकि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो गया होता है, आपको बेसिक चीजें इतनी अच्छे से पता चल गई होती है कि उसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, यू विल मेक इट. तो फिर दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड. इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आई टॉक. पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए. पीवाईक्यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो जब भी आप पीवाईक्यू करते हैं रिवाइज, उसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो कीवर्ड्स चूज करने हैं. कीवर्ड से आपको देन यू हैव टू रिलेट वेयर व्हाट पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. जैसे ही आप सपोज गवर्नेंस, सपोज आपका पॉलिटी में एक क्वेश्चन आता है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का कुछ इशू है, क्रिमिनल सिस्टम है, तो आपको उसमें मैच करना है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है. पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप वेटेज दे दो कि अगर सपोज जीएस 2 का आपका पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आईआर से आते हैं, 3 से 4 आपके 2 क्वेश्चन गवर्नेंस से आएंगे, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगा. तो उसको आप ऐसे करके एक मैट्रिक्स बना लो अपना. आपको क्या करना है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के जो कीवर्ड्स हैं उनको अलग से अपना एक पेपर लेके A4 साइज शीट लो, उसमें डिवाइड कर लो अपने पूरे सिलेबस को. जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि आपको 10 दिन तक से सिलेबस पढ़ना है, उसमें सिलेबस पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड करना है. ठीक है, हर एक टॉपिक में डिवाइड कर लिया. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विजिट करोगे. जब आप प्रीवियस पेपर्स विजिट करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है, कौन कौन से ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे यूपीएससी इज आस्किंग मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. जैसे कि आप मिडिवल का क्वेश्चन देखोगे, या फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप जीएस पेपर उठाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा दैट लॉट ऑफ टाइम्स same question has been asked. Border management has been asked unlimited times, and it has been asked again and again. ठीक है, यूएस इंडिया का रिलेशन हो गया, चाइना का कहीं ना कहीं है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट, इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार पूछते हैं. बार बार आपका वो आता है जो ये आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज है, वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन. सिमिलरली आपके आईआर में सेम चीज आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगभग सेम चीज आती है, ज्योग्राफी में आपका जैसे जीएस 1 में कहीं ना कहीं आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछ लिया जाता है, वही चीज आपका जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछ लिया जाता है. तो उस हिसाब, जब आप ये चीज करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इज प्लेइंग समवेयर इर्द गिर्द ही वो रह रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंट, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है. 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे बुद्धिज्म एक ऐसा टॉप, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके अशोका के ऊपर 2-4 बार दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. तो दे आर बोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. तो वो क्या है कि दे आर रोमिंग समवेयर नियर. तो फिर दैट इज द थिंग विच यू हैव टू हैक. You have to hack what UPSC wants to know from you.
ठीक है, ये आपका चीज होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कैसे करना है। यू हैव टू पुट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डोमेन्स को आप पुट करो और उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मैच करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आपसे पूछे। दैट इज हाउ यू एनालाइज। एंड उसके ऊपर जब आपका एक बार टॉपिक आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर नोट्स बनाना स्टार्ट करने। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अनदर थिंग, आई हैव टोल्ड यू फ्यू थिंग्स अभी जो यूपीएससी सिलेबस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आई वांट टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कीपिंग योर रिसोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल। आप 100 लोगों के टॉपर्स के वीडियोस देखने वाले हो, आप 100 बुक्स खरीद लोगे। यू आई कैन रियली अश्योर यू दैट मुझे लगता है कि मैंने सब लोगों से, आई डोंट नो, मुझे लगता है मैंने सबसे कम पढ़ाई की है पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में, बिकॉज आई यूज टू कीप माई रिसोर्सेज वेरी लेस। मेरा पबेड ऑप्शनल था, उसमें भी मैं, मतलब मेरे पास सिर्फ 3 बुक्स होती थी और एक ही मेरे पास नोट्स होते थे जिनको मैंने कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज किया था। एंड मैं उन्हीं पेपर, मतलब कि आई स्कोर्ड, मेरा पेपर 2 में तो आई स्कोर्ड 150 अबव। तो फिर उसमें भी दैट इज द थिंग जहाँ पे मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी, बट मैंने सिर्फ इतने मेरे बंडल के नोट्स थे जिनको मैंने 10 टाइम्स पढ़ा था। 10 टाइम 12 टाइम्स आई स्टडीड। एंड आई यूज टू, जैसे एआरसी होती थी उसको मैं 10 टाइम्स आई हैव रेड। तो मैं वही लिख के आ जाती थी उसमें, और हर बार इट यूज टू आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन दोज क्वेश्चन। क्योंकि आपको इतना ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। आप यूपीएससी, आप ये सोचो कि यूपीएससी का जितना पेपर है कितने पेजेस होते हैं उसमें, आप उतना ही तो लिख पाओगे ना, उससे ज्यादा तो आप लिख नहीं सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर रिसोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल। बाकी लोगों को पढ़ने दो, जो लोग आपको बोल रहे हैं ये भी पढ़ ले, इसकी बुक भी पढ़ ले, पढ़ने दो। यू डो नॉट हैव टू गो देयर, जस्ट कीप योर रिसोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल। मेरी जो कोर बुक्स थी वो यही थी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इफ यू वांट टू नोट, ये सब लोग आपको बताएंगे, सब आपके जितने भी टॉपिक की। तो फिर मेरे कुछ अलग नहीं थे, मैं बहुत बेसिक मिनिमम पढ़ती थी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस अपना इन्वायरमेंट के लिए, श्रीराम आईएएस और रमेश सिंह मैंने पढ़ी थी फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक आप पढ़ लो। जैसे हिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन के नोट्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विजन के नोट्स मैंने पढ़े थे कुछ। आई हैव नेवर स्टडीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में 11th सब पढ़ते, 11th की इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। नितिन सिंघानिया सबको पता है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, एंशियंट एंड मिडाइवल सबको पता है। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। ज्योग्राफी में मृणाल की, मेरे को ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी 11th 12th पढ़ा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। तो उसको समझने के लिए मैंने मृणाल सर का यूट्यूब चैनल पे, एक मैडम पढ़ाती हैं ज्योग्राफी, उनके मैंने यूट्यूब की वीडियोस थरली देखी थी, खुद के नोट्स बनाए थे, अच्छे से समझा था। इट हेल्प्ड मी अ लॉट। उससे मेरा ज्योग्राफी फुल एंड फाइनल हो गया था। मैंने उसके अलावा जीसी लॉन्ग को थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत मतलब रियली थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैंने नहीं उसको भी पढ़ा है। और बाकी मैंने एटलस से रिवीजन करती थी, मैं कहाँ पे क्या है चेक, ताकि मैं एवरी ज्योग्राफी का क्वेश्चन में आई यूज टू ड्रॉ अ मैप। तो फिर दैट इज इट। इकोनॉमी में मैंने सिर्फ रमेश सिंह पढ़ा था बहुत स्टार्टिंग में, एक एक दो बार रीड किया ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद मैंने श्रीराम पढ़ा था, श्रीराम आईएएस। उसके बाद मैंने कभी इकोनॉमी का बेसिक नहीं छुआ है। उसके बाद मैंने सिर्फ नीति आयोग पढ़ा है, बजट पढ़ा है, और अपना इकोनॉमिक सर्वे बजट प्लस नीति आयोग का रिपोर्ट्स हो गया। दूसरा जो करंट अफेयर्स होता है विजन का, उसके अलावा मैंने कभी इकोनॉमी में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको सेकंड, ये थर्ड एआरसी आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट पे, और एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, ये आपको पढ़ना है। और इन्वायरमेंट में शंकर है, करंट है, आईआर में भी आपका सिर्फ करंट है। सो ऑल इन ऑल आई वांट टू टेल यू, एथिक्स में भी क्रॉनिकल, लेक्सिकन, सब जो मेरे रिसोर्सेज है वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। एवरी टॉपर विल टेल यू। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि रिसोर्सेज इतने मिनिमम रखो, थोड़े रिसोर्सेज पढ़ो, उनको बहुत बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आई विल टेल यू दैट देयर इज अ प्लेट्यू थ्योरी। व्हाट हैपेंस इज कि जितने भी लोग यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एक प्लेट्यू यू विल मेक, है ना, एक जैसे प्लेट्यू होता है ना, हर इंसान को उतनी प्लेट्यूड नॉलेज है। जितने भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको 2 साल हो गया है लगभग लगभग, उन सबको उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको नॉलेज है, राइट। आपको क्या करना है, आपको उस नॉलेज से थोड़ा सा और आगे निकलना है, ताकि वो प्लेट्यू को आप एक माउंटेन मतलब या फिर हिल का एक शेप दे सको। वो जो आपका थोड़ा सा ऊपर जो हिल का एरिया रहेगा ना, वही आपको पहुंचाएगा आपकी रैंक तक। प्लेट्यूड नॉलेज इज एवरीवन इज हैविंग दैट नॉलेज। रन टुवर्ड्स व्हाट इज एडिशनल। ठीक है, तो this is the third thing that I told you, that to keep your resources as minimum as possible. Fourth hack that I can tell you that I have always done is, it's such a hack, you can really excel if you can use this idea. So the idea is using toppers copies.
आप विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, टॉपर्स की कॉपीज को डाउनलोड कर लो, उनको रट लो लिटरली। ऐसे यू विल नॉट बिलीव इट, बट ऐसे में ना मैंने कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ टॉपर्स की ऐसेस पढ़ती थी। क्योंकि ना उनके, देखो जो टॉपर्स हैं वो ऑलरेडी इतनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से अपना कंडेंस करके इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पोइट्री लेकर आते थे वो अपने ऐसे में डालते हैं, कोट्स लेकर आते हैं, एनेक्डोट्स लेकर आते हैं, मैं सिर्फ उनका कॉपी करती थी और पेस्ट करती थी अपने नोट्स में। मैंने थोड़ी बहुत बुक्स, मैं भी मतलब बुक्स तो आउट ऑफ इंटरेस्ट आई हैव रेड अ लॉट, बट जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो टॉपर्स की कॉपीज होती थी, क्योंकि द वे दे राइट, द वे दे आर मेंटेनिंग अ फ्लो इन ऐसे सपोज राइट, वो जो चीज़ें थी वो आपको बहुत हेल्प करती हैं अपने आंसर्स बिल्ड करने में। मैंने एक चीज़ देखी है, वाई इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन मेंस इज नॉट बिकॉज यू लैक नॉलेज, इट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेल वॉट यू नो, है ना। तो आप, यू आर नॉट एबल टू टेल हाउ टू, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट वॉट यू नो, दैट इज द इशू। कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरे बैचमेट्स हैं, जो कि हु आर नाउ एट वेरी गुड पोजिशन, जिनको कुछ खास आता नहीं था, who studied really very less, but they knew how to tell, how to represent, how to present it, put it in the paper, how to put it in the words. They were very good at telling what they know. दैट इज वाई उनको अगर चार अक्षर भी आते थे वो चार के चार अक्षर लिखकर आते थे पेपर में, बट देर वर पीपल हु न्यू 8 words, but they were forgetting and were able to only put suppose 2 3 words, so they were not making as good marks as the people who were actually good at putting the जितना वो अपना लिख पाते थे उसमें वो इतने अच्छे नहीं थे। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप लोगों को कम से कम पता हो, तो आप उसको अच्छे से फोकस वे में पढ़ सको। आप टॉपर्स की, जब मैं पढ़ती थी अपना प्रिपरेशन करती थी, टॉपर्स होते थे जैसे अनुदीप एंड अक्षत जैन एंड सृष्टि देशमुख, तो मैं उन लोगों की टॉपर्स की कॉपीज, मेरे को इतनी टॉपर्स कॉपीज मैंने इतनी बार पढ़ी है, इतनी मैंने रटी है कि मेरे को अभी भी उनकी हैंड राइटिंग याद है। आई स्टिल रिमेंबर हाउ दे यूज टू, जैसे अक्षय जैन का मुझे अभी भी याद है वो कैसे आंसर लिखते थे, सृष्टि देशमुख का मुझे अभी भी ऐसे याद है कि वो कैसे ऐसे लिखते थे। तो फिर आपको इतनी, मैंने मतलब कि मैंने अपने नोट्स की तरह टॉपर्स की कॉपीज को रटा है, क्योंकि मुझे लगता था दे नो, सो एंड आई न्यू माई स्ट्रेंथ दैट आई वाज एबल टू लर्न, यू नो, मिमिक। तो आई यूज टू रीड टॉपर्स की कॉपीज दिन रात। एग्जाम से पहले भी मैं टॉपर्स की कॉपीज पढ़ती थी, और नेक्स्ट डे आई न्यू व्हाट आई हैव टू राइट, हाउ आई हैव टू राइट, कैसे आपको पॉइंटर्स में लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चन का फ्लो मेंटेन करना है। जब आप इंट्रोडक्शन के बाद जब आप मेन नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो आपको कैसे फ्लो मेंटेन करना है ना। यू आर आस्किंग दैट हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करने का ना एक बहुत एक इसको कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें कीवर्ड देख लो। सपोज बॉर्डर सिक्योरिटी पे आपका क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। सपोज बॉर्डर सिक्योरिटी, आपको पता चला बॉर्डर सिक्योरिटी पे, आपको हर टॉपिक पे जो आपका यूपीएससी, इसको अच्छे से सुनना, यूपीएससी में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को के जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स पे आपको अपना एक एक इंट्रो रेडी करके रखना है। I'll tell you, people miss out a lot on this thing. You will think कि यार इतना इंट्रो हम कैसे बनाएंगे, but I can literally tell you that I had ready-made introductions. I always had ready-made introduction and conclusions on every topic of UPSC syllabus. बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक आता है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट का कितना हमारा बॉर्डर है और क्यों सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा होता था। और लास्ट में किसी एनएस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे थे, या फिर कोई यूएन का कोई ऐसा स्टेटमेंट हुआ करता था, तो मैं उसको अपना कंक्लूजन, रेडीमेड कंक्लूजन था मेरे को, बिकॉज यू वी ऑल नो दैट वी हैव वेरी लेस टाइम ड्यूरिंग मेंस का आंसर राइटिंग, तो फिर मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती थी सोचने के लिए कि मुझे क्या डालना है। एक अपने एसडीजीज होते थे, 2 4 कंक्लूजन है, गांधी जी होते थे, तो ये कुछ कुछ कंक्लूजन में रेडीमेड होते थे, मैं बस लिखती थी। मैं सोच वी यू विल नॉट थिंक इन द पेपर, okay, you will just have to keep writing. So this is the fifth thing that I'm telling you, that which is a hack, that keep your introduction and conclusions ready made. आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम होते हैं, आपको इंट्रो लिखना है, अपने अपना कीवर्ड देखा, उसके ऊपर आपका इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, उसको लिख दो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखो, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वो थ्रेड्स पूछ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज पूछ रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट स्पेसिफिक टू अ कंट्री पूछ रहे हैं, या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ आपका सी का ओशनिक साइड जो है वहां से पूछ रहे हैं, लैंड का बॉर्डर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, है ना। उससे थोड़ा सा अपना स्पेसिफिक कर लो, और इंट्रो आपने लिख दिया। इंट्रो के बाद आपको मतलब नॉट हमेशा, बट मैं तो ऐसा करती थी कि मैं हमेशा ना थोड़ा गुड पॉइंट्स लिखती थी कि बॉर्डर मैनेजमेंट में इंडिया का ये स्कीम्स हैं भी और काफी अच्छा
इंडिया ने परफॉर्म किया हुआ है। और यूपीएससी क्या पूछता था उसके बाद कि आपको तो जो दो चार चीजें पूछते थे, अपॉर्चुनिटीज पूछते थे, व्हाट आर द इश्यूज पूछते थे, सोल्यूशन पूछते थे, व्हाट आर द स्कीम्स हैं, यही तीन चार चीजें पूछेंगे वो हमेशा। तो आपको क्या करना है उसके बाद, और अगर अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन, ये तो चलो इसकी पूछ रहे हैं, अगर कोई आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी आता है सपोज, उसमें भी वो यही क्वेश्चन पूछते थे कि उसका क्या बैकग्राउंड था, उसमें क्यों नहीं डेवलप हो पाया, या क्यों वो इतना फ्लरिश हुआ, उसका गुड्स बैड्स है ना, प्रोज कॉन्स, इसी इसी इन्हीं के इर्द गिर्द जो होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अपने नोट्स भी इसी तरीके से हमेशा प्रिपेयर करने हैं। जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट का सपोज क्वेश्चन आया, आपने इंट्रो डाला जो आपका रेडीमेड था, आपने उस स्पेसिफिक बनाया उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका कुछ अच्छा सा लिखना है, कोई स्कीम आपने नोट करके रखी है रिसेंट की, उसका स्कीम लिख दिया, ये चल रहा है अभी, इंडिया इज परफॉर्मिंग दिस दिस दैट दैट, 2 लाइनों में लिख दो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उसके बाद आपको मेन डिमांड पे आ जाना है फटाफट। डिमांड जो है ना क्वेश्चन की, वो तो आपको इंट्रो में ही लिखनी होती है, ताकि एग्जामिनर शुड नो कि आपको पता चल गया व्हाट आई एम आस्किंग, नॉट वेस्टिंग माय टाइम। ठीक है, जब आपने नेक्स्ट, आपको बड़ी बड़ी हेडिंग में डालना है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सपोज थ्रेट्स पूछा था, थ्रेट्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट फॉर इंडिया लिखा आपने, उसके ऊपर आपने कुछ कुछ पॉइंटर्स डाले, आपने थोड़ा सा मैपिंग कर दी, थोड़ा सा आपने डेटा इंफॉर्मेशन डाल दिया। उसके बाद आपको लिखना होता है सोल्यूशन लिखना है, या फिर अपॉर्चुनिटीज लिखनी है। तो आपने 3-4 डोमेन में, जैसे वो स्पेशल होता था ना कि सोशल, पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, ये सब चीज़, तो उसी डायरेक्शन में सोच के आप अरे हर एक में बना सकते हो। जब अगर बॉर्डर मैनेजमेंट पूछा है तो उसमें इंटरनल क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल फोरा पे क्या कर सकते हो, पब्लिक से क्या कर सकते हो, प्राइवेट से क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज लाइंस यू हैव टू थिंक एंड मेक अ सोल्यूशन, और अपना कंक्लूजन देके एंड करना है। हर क्वेश्चन का फ्रेमिंग यही है। when you are making your notes, you have to write very again I am repeating myself, when you are making your notes, सिलेबस में जाओ, उसके टॉपिक्स देखो, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको देखो, उनका इंट्रो लिखो। ठीक है, 2-4 कीवर्ड्स के साथ तो आप सेम इंट्रो भी डाल सकते हो। इंट्रो लिखो, गुड्स लिखो, बैड्स लिखो, स्कीम्स लिखो, थ्रेट्स लिखो, अपॉर्चुनिटीज लिखो, सोल्यूशन लिखो। ठीक है, और एक कंक्लूजन लिखो। नोट्स ही आपको ऐसे बनाने हैं। जब आपके नोट्स ही क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बनने लगेंगे ना, तो आपको आंसर की प्रैक्टिस का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, क्योंकि व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, यू हैव ऑलरेडी डिड योर आंसर राइटिंग। नाउ यू डू नॉट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन कि यार मैंने नोट्स तो बनाए थे, हाउ टू नाउ राइट द आंसर। यू ऑलरेडी नो। और एक चीज ध्यान रखो कि यूपीएससी में बहुत क्रिस्पली आपको लिखना होता है। आपको ऐसे कहानी बनाने का, ऐसे आप सिर्फ ऐसे के पेपर में ही लिख पाते हो, उसके बाद यू विल नॉट गेट टाइम टू पुट वेरी लेंथी आंसर्स। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टेल, कि आपके आंसर राइटिंग जो होते हैं वो क्रिस्प होते हैं। दूसरी चीज, फिफ्थ सिक्स अभी मैं पॉइंट्स तो भूल चुकी हूँ, बट अनदर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, बिफोर गल्पिंग गल्पिंग ऑल द सिलेबस, है ना, गोइंग टूवर्ड्स द सिलेबस, यू हैव टू नो योर एप्टीट्यूड। अपने एप्टीट्यूड पे पहले वर्क करो। एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है? एप्टीट्यूड मीन्स हाउ बेटर यू आर एट प्रेजेंटिंग योर नॉलेज। मतलब आप इसको सिंपल टर्म्स में इस तरीके से समझ सकते हो। एप्टीट्यूड इज हाउ वेल यू आर एबल टू पुट योर टैलेंट इनटू रियलिटी, राइट, इस तरीके से। तो फिर एप्टीट्यूड में आपको ये देखना है कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज, हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सिलेबस तो आप कर लोगे, इन्फॉर्मेशन जो रट्टाफिकेशन होता है वो तो हर इंसान कर लेता है ना, किसी ना किसी तरीके से, कोई लिख के, पढ़ के, देख के। उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस इज आपको कितना लिमिटेड पता है और आप कितना ज्यादा उससे कर पा रहे हो अपने आंसर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अनदर थिंग इज, हाँ, देर आर मेनी पीपल एस्पिरेंट्स हु आस्क्ड मी कि व्हाट इज द राइट, अभी जैसे आप अभी स्टार्ट करोगे, देन आप फेब्रवरी तक पहुंचते पहुंचते सोचोगे कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ। ट्रस्ट मी, देर इज नो राइट टाइम, देर इज नो राइट ईयर। बिल्कुल बुलजाई नहीं होने वाला है आपके साथ कि हाँ दिस ईयर आई विल अटेम्प्ट एंड आई विल क्लियर। every time when I had cleared my, I'll tell you this thing, it not many people know, very close people know this thing, that when when I had cleared my prelims, क्या हुआ था कि आई वॉज सो नेगेटिव दैट आई माइट नॉट क्लियर माई प्रिलिम्स। तो मैंने अपना पेपर जो रिजल्ट होता है वो मैंने अच्छे से देखा नहीं था। क्या हुआ था कि आई डेंट सी माई रिजल्ट एंड आई डेंट सी कि मैंने क्लियर कर लिया है। तो आई हैड लेफ्ट द प्रिपरेशन, मुझे लगा था कि आई हैड नॉट क्लियर। 1 मंथ वेंट, ठीक है। फिर यूपीएससी का एक मैसेज आता है कि प्लीज फिल योर डैफ। आई रिसीव्ड दैट मैसेज एंड आई वाज शॉक्ड। आई थॉट कि
I too saw that I didn't clear prelims, then how come this DAF I have to fill? That time I realized that I had filled 1 month में वेस्ट कर चुकी थी ऑलरेडी अपना, ठीक है। एंड उस टाइम पे ऑल द थिंग्स, बिकॉज मैंने अपना पूरा 1 महीना वेस्ट कर चुका था और मैंने कुछ न्यूज़पेपर भी छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे आई वॉज रियली फीलिंग आई डोंट नो हाउ आई विल मेक इट, एंड बिकॉज आई हैड नॉट क्लियर्ड माई प्रिलिम्स ऑल्सो आई वॉज सो डिप्रेस्ड दैट आई विल नॉट मेक इट। हेल्थ इश्यूज, ऑल ऑफ दीज थिंग हैपेंड, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई डिड इज कि जो मैंने पहले अपने मेंस लिखा था 2020 में, उसका जो भी मेरे पास मटेरियल था, वॉट एवर आई हैड, आई रिवाइज्ड दैट टू अ नेक्स्ट लेवल। आई जस्ट मेरे पास कुछ करंट अफेयर्स भी नहीं था उस टाइम पे, 2-4 चीज़ें मेरे को पता थी, उन्हीं को थोड़ा सा ब्रेन, मेरे को बहुत कम नॉलेज थी उस टाइम पे, बहुत कम नॉलेज। डिस्पाइट दैट आई कुड जस्ट पुट इट इन good words, because of which I got this services. So I want to tell you this thing, that there is no right time. You will always face some or the other issue in your life. कभी हेल्थ इशू हो जाएगा, कभी फाइनेंशियल इशू हो जाएगा, कभी आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, आपको ब्रेकअप हो जाएगा, या बॉयफ्रेंड छोड़ देगा, कुछ ना कुछ थिंग्स विल कीप हैपनिंग, है ना। फैमिली का भी चीज़ें होती हैं। आई रियली फील कि ओवर एंड में बच्चे पढ़ाई करते हैं इतना सब कुछ छोड़ के, एंड लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर। तो यू विल नेवर नेवर लीव, आपने 5 महीने भी पढ़ाई कर ली अच्छे से, जस्ट गिव इट अ शॉट, ठीक है। जस्ट, और हर अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट देके सोच के आपको प्रिपेयर करना है कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट इन whether to take mentorship or not. It very much depends on your own caliber and your own study way of study, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको डिस्कस करके, बात करके, सुन के ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं जो खुद से पढ़ के समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको 4 लोग, मतलब ग्रुप स्टडीज में जिनको आदत होती है। कुछ लोग होते हैं जो सोलो रीडर होते हैं, जिनको सोलो स्टडी करने में ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। टू अंडरस्टैंड दिस कि देर आर सम थिंग्स इन यूपीएससी विच डेफिनेटली रिक्वायर अ मेंटोरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो ऑप्शनल होता है, बिकॉज ऑप्शनल में दे आर आस्किंग यू टू हैव द नॉलेज एट मास्टर्स लेवल। तो उसमें आपको, मैंने भी सिर्फ ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, मैंने क्लासरूम रेगुलर नहीं लिया था फाउंडेशन के लिए, तो दैट इज व्हाट। तो फिर अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, अगर आपका सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम बीटेक एंड आपको थोड़ा सा आर्ट्स थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, यू आर नॉट ग्रास्पिंग द थिंग्स, है ना, यू आर नॉट ग्रास्पिंग से जोग्राफी, तो आप डेफिनेटली मेंटरशिप ले लो। अगर आपको लगता है ये आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा एनसीईआरटी में जब गो थ्रू करोगे, अगर आपको लगने लगेगा कि यू आर गेटिंग द थिंग्स एंड यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ द, यू आर नॉट, स्टार्टिंग में आपको आंसर नहीं कर पाओगे आप, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। अगर आपको इतना भी आप समझ पा रहे हो जो आपने पढ़ा है, उसका अगर आप समझ पा रहे हो कि व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, तो फिर यू आर गुड टू गो, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये इशू आ रहा है कि you are not able to make sense out of the question itself, you are not able to hit the demand, you are not able to understand the demand of the question, then you have to go to the mentorship. It means that somewhere your fundamental is lacking, उस फंडामेंटल के लिए यू हैव टू गो फॉर मेंटोरशिप। अगर आप स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं और थोड़ा बहुत डिमांड समझ पा रहे हैं, तो फिर यू आर इन द राइट वे। आप इसका टेस्ट ऐसे भी कर सकते हो कि टॉपर्स की कॉपी लो, क्वेश्चन पढ़ो। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद करना है ना, तो ताकि एकदम स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता होंगे आंसर। तो जब आप टॉपर्स की कॉपीज पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा आइडिया लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मुझे थोड़ा सा आंसर आपको नहीं, आई एम अगेन सेइंग, आंसर नहीं आना है आपको, आपको सिर्फ डिमांड समझनी है कि क्या आप डिमांड समझ पा रहे हो क्वेश्चन की। अगर नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो आप मेंटरशिप लो। इट मीन्स योर फंडामेंटल इज लैकिंग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग, तो आप मेंटरशिप लो। अगर आप समझ पा रहे हो अपने आप से वो चीज़, तो आपको मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटने के लिए आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेज के लिए आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है। मेंटरशिप की आपको ज़रूरत सिर्फ तब है जब वो आपको डायरेक्शन दे सके, यू अंडरस्टैंड। आपको मेंटरशिप इज़ फॉर द डायरेक्शन, नॉट द कंटेंट। कंटेंट आपको बहुत मिलेगा अलग अलग जगह से, कहीं से भी लो, मार्केट से लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, टॉपर से लो, ठीक है। जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ उनसे लो। कंटेंट इज नॉट द, कंटेंट के लिए कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है। कोचिंग ज्वाइन करनी है डायरेक्शन के लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं सेंस मेक कर रहा है, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर वेदर टू गो फॉर कोचिंग और नॉट। कोचिंग लगाना क्या जरूरी है कि नहीं, लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड, आई हैव गिवन यू द आंसर। व्हेन योर डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, देन यू हैव टू टेक मेंटरशिप। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? आई विल टेल यू, take mocks from good institutes, there is no much difference, you will make it।
ठीक है। सी सेट स्ट्रैटेजी, सी सेट के लिए बेसिकली व्हाट आई डिड, फर्स्टली मैंने अपना दो चार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे यूपीएससी के, वो मैंने सी सेट के पढ़े, सॉल्व किए थे विद इन अ टाइम लिमिट। इफ आई वाज एबल टू मेक इट टू द कट ऑफ दैट ईयर, तो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था सी सेट का। मेरा जो लॉजिकल रीजन, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक रहता था हमेशा। आपको सी सेट में दो चीज़ें करनी है, एक तो ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखना है आप कट ऑफ कर पा रहे हो नहीं। अगर आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दो चार पांच क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। अगर आप सब में कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको नहीं है प्रिपरेशन की, डोंट वरी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा गैप है या फिर बहुत मार्जिन से आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ करनी है कि गो थ्रू 5-10 ईयर्स के सी सेट के क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी के। और उसमें आपको अपना स्ट्रॉन्ग, आप उसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आप कहाँ पे मार्क्स आपके मिल रहे हैं और कहाँ आपको नहीं मिल रहे हैं मार्क्स, है ना। मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो आई ऑलवेज यूज टू फिनिश, मतलब मेरी एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती थी, तो फिर मैं हमेशा सी सेट में वो क्वेश्चन पहले कर लेती थी। मैथ्स में थोड़ा छोड़ देती थी, मैथ्स में मैं इजी क्वेश्चंस करती थी, हार्ड क्वेश्चन छोड़ देती थी, तो मेरा हमेशा क्लियर हो जाता था। सो आपको यही मतलब दिस इज व्हाट सी सेट का मैंने ऐसा प्रिपरेशन नहीं करा था, बट देर आर सम गुड सीक्वेंस, मतलब ऑनलाइन अच्छे खासे सी सेट के, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह, टॉपिक वाइज देर आर वीडियोज, यू कैन वॉच दैट। और आप जनरल भी उसको इजीली भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उनके क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लगोगे, कोई हर एक क्वेश्चन में एक टेक्निक यूज हो रही होती है, उसको आप ग्रास्प कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सी सेट विल नॉट मेक मच ट्रबल। थोड़ा सा आपको प्रीवियस, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट के सी सेट के क्वेश्चन मत सॉल्व करना, दैट्स अ रेड फ्लैग। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं और वो इतना तालमेल नहीं होता उनका। यूपीएससी का ही सॉल्व करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। recollect in mind after closing the book or reread, which is correct. You should always recollect, you should never open the book if you have forgotten. Why I am telling you, क्या होता है कि आप घर में तो जब रिवाइज करते हो तो आप बुक खोल के देख लेते हो फटाफट, अच्छा मैं क्या बोला था, हाँ ये बोला था, है ना। लेकिन जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, वहां पे आपका माइंड को अगर ये हैबिट हो चुकी है कि अगर मैं भूल गया तो मैं देख लूंगा, तो आपका दिमाग ना उस कंफर्ट जोन से आगे ही नहीं जाएगा। what you have to do is you have to push your brain to think what you are not able to remember, what you are not able to recall. So always push yourself through out of your comfort zone. आपको हमेशा क्या करना है, नहीं याद आ रहा है, बुक ओपन नहीं करनी है, ट्राई टू रिकलेक्ट, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ट्राई टू रिकलेक्ट, आफ्टर दैट यू ओपन अ बुक। बट दैट इज नॉट अ गिफ्ट टू यू, दैट्स अ पेनल्टी फॉर यू, है ना। अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, यू हैव टू मेक अ हैबिट दैट यू आर नॉट लुकिंग एट द बुक, otherwise it will be difficult at the end when you were sitting in the actual exam, तब आपके पास कोई बुक नहीं होगी और आपका ब्रेन भी ट्रेंड नहीं होगा वो चीजें रिकलेक्ट करने के लिए जो आप भूल चुके हो। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू रिकलेक्ट द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन। बेसिकली आप फॉरगॉट नहीं करते हो, जस्ट दैट समवेयर इट इज देयर। करंट अफेयर्स कितने टाइम का होना चाहिए? करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट करंट अफेयर्स मैं ये कहूँगी कि 50-50। कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पे ही पूछता है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज वेरी मच बेस्ड ऑन स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पे आपको स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने नोट्स को, स्टैटिक इज योर फाउंडेशन। ऐसा भी होगा कि आपको ना करंट अफेयर्स में आपको यूपीएससी विल आस्क समथिंग एंड यू विल नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट। आपको उसके बारे में वरी नहीं करना है, आपको उसका बेसिक लिख देना है, उसमें भी आपको कम से कम 2.5 मार्क्स, 2 मार्क्स लाइक दैट यू विल गेट, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव रिटन द बेसिक थिंग्स। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था टेक्नोलॉजी पे रिगार्डिंग सम साइंस एंड टेक, उसमें कोई कीवर्ड था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। या फिर सिमिलरली हिस्ट्री में जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि भी रिसेंटली ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पूछ लिया, यू माइट नॉट नो क्या हुआ था अभी, है ना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट यू डोंट नो, बट उसका कहीं ना कहीं बेसिक स्टैटिक का कहीं ना कहीं उसका एक कोर होगा, जहाँ से उस क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा होगा, वो कोर आप लिख कर आ जाओ, वो फंडामेंटल आप लिख कर आ जाओ, यू विल स्टिल गेट सम मार्क्स। करंट अफेयर्स हो गया। कौन सी मिस्टेक की थी मैंने जो मिस्टेक की थी, फर्स्ट मिस्टेक आई टेल यू इज दैट आई लेफ्ट माय प्रिपरेशन इन बिटवीन। मतलब कि मेरा क्या था, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जस्ट आफ्टर यू माय कॉलेज, इतना प्रिपरेशन नहीं किया। सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि मैंने मेंस लिखा, मुझे लगा मेरा क्लियर नहीं हुआ है मेंस, तो आई एम नॉट मेड फॉर यूपीएससी, सो आई लेफ्ट इट, आई स्विच टू स्टार्टअप एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दैट लेटर माय रिजल्ट केम तो आई रियलाइज आई जस्ट मिस्ड इट बाय 2 मार्क्स।
Then I realized I should have actually not left my preparation altogether. I should have continued it maybe. तो दैट इज द थिंग, आपको बहुत टाइम बहुत बार ऐसा लगेगा कि यू शुड लीव द जॉब और समथिंग समथिंग लाइक दैट, बट यू शुड लीव द प्रिपरेशन एंड गो फॉर द जॉब समथिंग लाइक दैट, यू शुड नॉट क्विट अंटिल एटलीस्ट 3 साल से पहले तो यू शुड नॉट क्विट। 1.5 साल यू हैव टू बी properly into it, और उसके 1.5 साल you can little bit loosen up and keep the balance of your life going on, but you should not leave it। एटलीस्ट 3 साल तो देने हैं सबको, एवरेज ये रहता है। इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देर आर यूपीएससी इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क प्रॉपरली, यू नो इट्स हैज सम लक फैक्टर एज वेल। जैसे कोविड था, हु न्यू कोविड विल कम, हु न्यू हु विल गेट इफेक्टेड, नोबडी नो। हु न्यू कि किसी का स्ट्रेंथ ऑनलाइन उसमें था, किसी का स्ट्रेंथ नहीं था ऑनलाइन, किसी को ऑफलाइन ही समझ आता था, उसका लॉस हो गया। हु न्यू दिस थिंग, है ना। समटाइम्स सम थिंग्स आर लक बेस्ड, तो इसीलिए आई एम सेइंग कि एवरेज आउट करके 3 साल देने चाहिए प्रिपरेशन के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर जो मेरा पोस्ट है, हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इज बेसिकली आफ्टर यूपीएससी इंटरव्यू एंड एवरीथिंग हैपेंस, उसके बाद एक और इंटरव्यू होता है हमारा, दैट इज डायरेक्टली टेकन बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डैफ कैसे बनाना चाहिए? डैफ में ऑलवेज क्या हुआ था कि बिकॉज आई वॉज इन टू लॉट ऑफ थिंग्स, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऑल ऑफ दैट, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डैफ में लिखी थी। I scored interview में I scored 187 marks. That's a pretty decent marks and good marks usually. तो इंटरव्यू में डैफ आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल रखना है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट नहीं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू टेक प्रेशर ऑन दैट, जस्ट बी ट्रुथफुल। क्योंकि वहाँ पे ना दे विल टेस्ट हु यू आर। अगर यू आर नॉट ऑनेस्ट विद वॉट यू हैव डन, दे विल नो। मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे विच वर मोर और लेस रिलेटेड टू माय पब एड एंड माय थोड़ा सा जो मैंने वर्क किया हुआ है स्टार्टअप में, ऑल दीज थिंग्स। मुझसे इतना हॉबीज पे नहीं पूछा गया था, बट आई विल टेल यू कि यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद वॉट यू आर राइटिंग इन योर डैफ। अपनी हॉबीज के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर आप जो कैडर चूज कर रहे हैं, है ना, मतलब हो सकता है दे विल आस्क व्हाट वेयर यू वांट टू, मतलब होम कैडर है जो भी है, आपको कहाँ जाना है, वहाँ पे क्यों जाना है, क्या आप करना चाहते हो चेंज। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी ट्रुथफुल। बहुत आइडियलाइज करके नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है कि अगर सपोज मैंने चेस लिखा था, तो चेस में ऐसा नहीं है कि आप चेस ऐसे एक मजे के लिए, जैसे बैडमिंटन, वो गली वाला बैडमिंटन खेलते हो तो आपने लिख दिया मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, वो बैडमिंटन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। They're expecting, they will ask you what are the tactics in chess, what is a tactic का मतलब क्या होता है। they will ask weight क्या होता है शटल का, measurements क्या होते हैं, who is the favorite player, what technique that favorite player is, जैसे अभी लक्ष्य सेन है, what technique he is using, what PV Sindhu has done in her life, where why India is having more sports में, बैडमिंटन में players, and why not North India। यू हैव टू आंसर कि इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, है ना। तो कुछ भी आप लिखते हो उसको थरो आपको होना चाहिए, और थरो तभी होगा जब आप ट्रुथफुली उसके बारे में लिखोगे। अगर आपको सच में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ओनली देन यू राइट। मैप्स को कैसे याद करें? आपको मैप्स को याद करने के लिए क्या करना है, एटलस खरीद लो सबसे पहले। ठीक है, एटलस में देर आर मैनी मैप्स। ठीक है, मैप्स आपके इंडिया का होता है, यूरोप का होता है ना। तो मैप में मैं क्या करती थी, जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते थे, तो वो चीज़, बाकी मैं हर, जैसे इक्वेटर है, ठीक है, मुझे पता है इक्वेटर के वो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि दिस कंट्री के वहाँ पे इक्वेटर पास, तो मैं हमेशा ये चीज़ें रेडीमेड रखती थी। वो पूछे चाहे ना पूछे, इक्वेटर की सारी कंट्रीज मैंने याद कर ली हैं। ठीक है, जो रेड सी को सराउंड करती हैं, मेडिटेरियन सी को सराउंड करती हैं, वो कंट्रीज को आपने याद करके एक एक्रोनिम बना लिया, है ना। जैसे कि देर आर मेनी एक्रोनिम्स फॉर मैपिंग, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस तरीके से मैं मैप्स करती थी। सिमिलरली मैप्स को याद करने के लिए इट इज़ वेरी, आपको यूट्यूब खोलो और उसमें वीडियो देख लो। जैसे सपोज आपको स्टील प्लांट्स या स्टील कोल वगैरह कहाँ मिलता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट ओपन अ यूट्यूब वीडियो, एंड जब आप उसको विजुअलाइज करोगे, जब आप देखोगे उन चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा रादर देन समराइजिंग इट इन योर हेड। सिमिलरली मैपिंग, जैसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व, ये सब है आपके, उनको भी जब आप देखते हो तो उनको सर्च करो। जिम कॉर्बेट को एक बार सर्च कर लो, व्हाट इज देयर, हाउ इज इट। कभी ट्रैवल करने का शौक है तो ट्रैवल कर लो, हाँ हो या हो।
उससे क्या होता है, यू विल मेक अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स, वेयर दे आर, व्हाट दे आर, है ना। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें जो भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको अलग लिख लो। मैं हमेशा एक मैपिंग का की वो बना कर रखती थी कि क्या क्या चीजें अभी तक पूछी हुई हैं, उन्हीं के बेस पे आई यूज टू मेक नोट्स। ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन एंड टाइम। कई बार क्या होता है, ऐसा मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ था कि आरटीआई पे क्वेश्चन आता था, लास्ट क्वेश्चन होता था 1920, सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आता था, तो मैं टाइम नहीं होता था मेरे पास, तो मैं सिर्फ ऐसे एक सर्कल बना के फटाफट 5 पॉइंट लिखे एंड फिनिशिंग द क्वेश्चन, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इट इज नो वन थिंग इज बेटर। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट नोट्स, बिकॉज समवन इज आस्किंग रिगार्डिंग नोट्स। ठीक है, तो नोट्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं। आई एम नॉट एबल टू शेयर दिस विद यू, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सिलेबस के जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको आपको करना है, तो फिर आई यूज वन नोट पे आई यूज टू मेक नोट, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी है। ऑनलाइन में इसलिए बनाती थी बिकॉज इट वॉज मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल ऑल्सो। फ्लेक्सिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज आपका यू आर एबल टू access it from anywhere, and flexible how you can add, subtract, delete, whatsoever, you can copy paste also। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो उसका भी मैं कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकती थी अपना यूट्यूब उस पे वन नोट पे। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि GS2 है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर, वल्नरेबल सेक्शन, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, गवर्नमेंट इंटरेक्शन, फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स जो है ये आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब उसके अंदर भी आपको टॉपिक्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल फेडरलिज्म सरकारिया कमीशन पे आता है, और सेंट्रल स्टेट का आता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस यूटी इशू चल रहा था उस टाइम पे, लोकल गवर्नेंस का आता है, यूएलबीज आपका अल्ट्रा लोकल, ये अर्बन लोकल बॉडीज आता है, एंड इक्वालिटी अमंग स्टेट्स और सिक्स्थ शेड्यूल। ये कुछ टॉपिक्स थे जो उस टाइम पे चल रहे थे। ठीक है, सिमिलरली जुडिशरी में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिलीजन एंड जुडिशरी, लोकपाल हो गया, ये ब्रांचेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ठीक है, कस्टोडियल इंटरोगेशन हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गया, ठीक है, डेथ पेनल्टी, जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स, यूके कोर्ट्स वर्सेस इंडियन कोर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो टॉपिक्स थे, ये मैं सपोज न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स में कहीं पे भी कोई टॉपिक आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उसको डाल के रख लिया अपने GS2 में जुडिशरी के अंडर। अब मुझे उसके ऊपर लिखना है, सेम वही चीज लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी। क्या चीजें थी, इंट्रो, जुडिशरी का आप एक इंट्रो प्रिपेयर करके रखोगे, रेडीमेड इंट्रो। जुडिशरी का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको लगा देना है आपको, वो इंट्रोडक्शन, है ना, कुछ सोचना नहीं है। 2-3 ऐसे इंट्रोडक्शन रखने हैं आपको। देन इंट्रोडक्शन आप ऐसे भी रख सकते हो, एक एक पॉजिटिव इंट्रो, एक नेगेटिव इंट्रो, क्योंकि अब जैसे जुडिशरी है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस इज अ बिग इशू, तो आप एक नेगेटिव थोड़ा सा इंट्रो रख सकते हैं, एक पॉजिटिव इंट्रो रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये अब जुडिशरी का टॉपिक था, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक नोट्स। आपने जब सिलेबस में से कीवर्ड्स निकाले, उन कीवर्ड्स को अलग से रखो, उन कीवर्ड्स के ऊपर करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक अभी चल रहा है उनको उसके अंडर डालो। ठीक है, देन उसके ऊपर अपने पॉइंट्स लिखो, इंट्रो लिखना है, गुड्स बैड डेटा आपका हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, थ्रेट्स हो गया, अभी तक क्या स्कीम चल रही है, और एक कंक्लूजन। हर टॉपिक, हर नोट में आपको यही करना है, सेम थिंग। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज हाउ यू विल मेक नोट्स। ठीक है, दिस इज मोर और लेस हाउ यू विल बेसिकली सी। आई डिडंट गो, मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं उनका क्या रहता है वीडियोस में कि दे विल टेल यू कि प्रीलिम्स कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है ना। आई हैव नॉट टेकन दिस लाइव सेशन बेस्ड ऑन दैट, व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी कॉमन थिंग्स नाउ। वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं एंड यू विल नो इट। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन इज नॉट डिवाइडेड इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इट इज ऑलवेज वन प्रिपरेशन। यू आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर वन थिंग। देर इज नो कि प्रीलिम्स के लिए मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, मेंस के लिए मेरा प्रिपरेशन चल रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज यूपीएससी। यू हैव टू गेट एंड गेट द रैंक एंड गेट इनटू सिविल सर्विसेज, दैट इज द थिंग। तो अलग अलग प्रिपरेशन नहीं चल रहा होता है इसका। दैट इज वाई आई हैव टेकन एवरीथिंग, क्योंकि जो रिसोर्सेज आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो वही आप मेंस में पढ़ते हो, वही आप इंटरव्यू में भी पढ़ते हो। लक्ष्मीकांत मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ी है, मेंस में भी पढ़ी है, इंटरव्यू में भी पढ़ी है। ठीक है,
शंकर आईएएस, जो जो बेसिक चीज़ें वो सब मैंने थ्रू आउट पढ़ा है, तो आपका ये बेसिक रिसोर्सेज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सिमिलरली द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग यूपीएससी सिलेबस, आपका ऑप्शनल या फिर टॉपर्स की कॉपी जो आपको देखनी है, जो भी ये सब चीज़ें, ये चीज़ें भी सेम रहती हैं हमेशा, है ना। ये आपको प्रीलिम्स में भी सेम रखनी है, मेंस में भी सेम रखनी है, इंटरव्यू में भी सेम रखनी है। इंटरव्यू में भी आप टॉपर्स की वीडियोस देखते हो, है ना, तो ऑलवेज दीज थिंग्स आर सेम फॉर एवरीथिंग। um, उसके अलावा वन मोर थिंग आई वाज टेलिंग यू रिगार्डिंग आपके मॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द पर्सन हु नोज अ लॉट इज नॉट गोइंग टू मेक इन टू दिस एग्जाम, द पर्सन हु इज एबल टू प्रेजेंट what you what little you know is going to make through this exam। तो फिर मॉक्स हेल्प यू इन दैट डायरेक्शन। मॉक्स में आपको क्या सीखना है? मॉक्स में आपको ये नहीं सीखना है कि आपको कितना आता है, आपको ये सीखना है, मतलब ये तो सीखना है, बट उसके साथ आपको ये सीखना है कि जब आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है। It used to happen a lot with me that I didn't knew a single thing उस क्वेश्चन के बारे में, बट आई स्टिल यूज टू राइट, एंड इट विल हैपन इन रियल एग्जाम ऑल्सो। यू विल नॉट नो एट ऑल, आपको पता ही नहीं चलेगा ये पूछा कहाँ से, बट समवेयर you will have some hint because you have studied for 2.5 year or so। you will have some hint, तुमको लगेगा कि अच्छा मुझे थोड़ा तो कुछ कुछ आइडिया है इसका, बट नहीं समझ आ रहा है आंसर लिखना क्या है। उस टाइम पे आप किस तरीके से वो 1.5-2 मार्क्स आप लेकर आओगे ना किसी और से ज्यादा, इट विल गेट यू द रैंक। तो फिर आपको मॉक्स में यही प्रिपेयर करना होता है कि व्हेन यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर, द लिमिटेड नॉलेज यू नो, how to see toppers answer copy to make your master day, please answer। बेसिकली टॉपर्स आंसर कॉपी आपके जो, मैं तो विजन में अवेलेबल है टॉपर्स की कॉपी, तो मैं उसको ओपन करती थी। मैं क्या करती थी, मैं टॉपर्स कॉपीज को कैसे एनालाइज करती थी, आई यूज टू रीड द क्वेश्चन, आई यूज टू हैव अ स्ट्रक्चर इन माई कॉपी, कि जैसे क्वेश्चन पूछा है सपोज, ठीक है, आई राइट इट डाउन कि व्हाट वुड हैव आई रिटन, मैंने क्या उसमें लिखा होता। मैं ऐसा इंट्रो लिखती, उसमें ये लिखती, मैं उसका सब्जेक्ट मतलब जो बॉडी एस्पेक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें लिखती, देन ये इन्वॉल्व करती, ये 4 पॉइंट्स लिखती, सोल्यूशन में ये 4 पॉइंट्स लिखती और कंक्लूड कर देती। दिस इज व्हाट माई आंसर वुड बी। जब फिर मैं उसके बाद आंसर टॉपर का देखती थी कि टॉपर ने क्या लिखा है, फिर मैं कंपेयर करती थी कि व्हाट आई लैग्ड, व्हाट एक्स्ट्रा ही थॉट, he or she thought, and what I could not think, what the demand of the question I could not point out, मैं कौन सा ऐसा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है जो मैं नहीं समझ पाई या हिट नहीं कर पाई, है ना। तो वो चीज़ जब आप समझोगे टॉपर्स और अपना कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर लैकिंग। स्लोली जब आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 10-12 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली और ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग द वे टॉपर वाज थिंकिंग। आप एक का टाइम के बाद उस टॉपर के लेवल पे थिंक करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज वेयर यू वांटेड टू रीच, और इवन बेटर देन दैट पर्सन, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ टॉपर्स कॉपीज। इट हैज हेल्प मी अ लॉट। मैंने ऐसे ही करा है, मेरे 120 समथिंग मार्क्स थे ऐसे में, दो जितनी बार मैंने लिखा है अबव लाइक दैट, तो जितनी बार भी मैं ऐसे लिखती थी तो दैट इज हाउ आई स्कोर्ड, बिकॉज मैं टॉपर्स की लिटरली, मैं उनका पोएट्री जो वो लिख के आते थे मैं उसको लिटरली कॉपी पेस्ट करके आती थी, बिकॉज nobody is going to tell कि why he or she wrote the same thing, it is about your individual ऐसे ना। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का तरीका ये होता है दैट यू ऑलवेज थिंक इट इन मैनर कि फॉर एवरी टॉपिक देर आर सम डायमेंशंस। एक डायमेंशन होता है गवर्नमेंटल का डायमेंशन, गवर्नमेंट का डायमेंशन, एक होता है प्राइवेट, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है, एक होता है आपका पॉलिटिकल, ठीक है, एक आपका एनवायरमेंटल ये कह सकते हैं या फिर सोसाइटल कह सकते हैं डिपेंडिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा अपने ब्रेन में रखनी है 3-4 चीजें। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी आया, सपोज आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, है ना, अब आप उसको हर जगह से रिलेट कर दो। सपोज आपका इस पे सॉफ्ट पावर पे आया है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ये लिखना है कि हाउ योर पब्लिक इज हेल्पिंग यू, है ना। आपका पब्लिक का जो रिलीजन है, रिलीजन फेस्टिवल्स है, जैसे कि योगा हो गया एक, है ना, ये आपका इंटरनल चीज है विच यू कैन पुट इंटरनेशनली। सिमिलरली आपका इन्वायरमेंट में जाओ, फिर आप इन्वायरमेंट में आप क्या सोच सकते हो, आपका इन्वायरमेंटल जो आप फॉलो कर रहे हैं इतने सारे जो आपकी ट्रीटीज हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या स्टेप ले रहा है, एसडीजीज में इंडिया ने क्या किया, वो आपका इन्वायरमेंटल डोमेन आ गया, है ना, जो आप सॉफ्ट पावर में आप डाल सकते हो, ऑल्दो इट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट बट यू कैन स्टिल पुट इट इन देयर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या है, गवर्नमेंटल लेवल पे क्या है, 2+2 डायलॉग्स है जो आपका वो सब आप लिख सकते हो।
पॉलिटिकली क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल आप लिख सकते हो, सेकुलरिज्म है हमारी कंट्री में, है ना? तो वो कैसे हमारे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को या हमारी इमेज को बना रहा है, बिगाड़ रहा है, सॉफ्ट पावर है एक तरीके से। आप फिर डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो। उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मल्टी डायमेंशनल बनाना होता है। आपको क्या करना है, सपोज आपका GS2 का पेपर है। GS2 के पेपर में आपको सोचना है GS1 के हिसाब से, GS3 के हिसाब से और GS4 के हिसाब से भी। बिकॉज यूपीएससी हैज गिवन यू डायमेंशन, यूपीएससी ने आपको GS1 2 3 4 में ऑलरेडी डायमेंशन दे दिया है। इकोनॉमिकल डायमेंशन दे, जैसे इकोनॉमी भी हम डाल सकते हैं, इकोनॉमिकल डायमेंशन दे दिया है, ज्योग्राफिकल डायमेंशन दे दिया है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आप उसको ना ऐसे दिमाग में सोचना शुरू कर दो, GS1 में से आप क्या डाल सकते हो इसमें। सपोज आपका, जैसे मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बताया, आप उसमें क्या डाल सकते हो GS1 से, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालो। इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री से लेकर पंचशील पॉलिसी, कब कितना इंडिया ने किया है लोगों के लिए, ब्रदरहुड जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उठाओ, कैसे इंडिया हैज कम अप, है ना? हिस्ट्री हो गया आपका। फिर ज्योग्राफी सोचो, ज्योग्राफिकली इंडिया का क्या प्लेसमेंट है, ज्योग्राफी ग्लोबल उस पे, हाउ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप चीज़ें लिख लो जो GS3 का था। एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें लिख लो कि इंडिया की एक फिलॉसफी है, हाँ, हम लोगों ने वासुदेव कुटुंबकम है हमारा, जो हम हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, इट्स अ फिलॉसफी, है ना? एथिकल चीज़ है थोड़ा सा। तो आप क्या करो, कोई भी आपका सपोज बॉर्डर सिक्योरिटी पे सपोज, ठीक है, क्वेश्चन आपका GS3 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करो सोचना GS1 से। GS1 का हिस्ट्री निकालो बॉर्डर मैनेजमेंट में। आपको याद करना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट हिस्टोरिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या इश्यूज थे बॉर्डर में, जो रिवर, हम इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं था, इंडिया के पास चाइना, रिवर्स, ऑल दीज थिंग्स, हमारे किस तरीके से माइग्रेशन हुआ, इंडिपेंडेंस के वजह से बॉर्डर इश्यूज हुए, उस टाइम पे सेटल नहीं हुआ, है ना? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अपने उठा लिया, जोग्राफिकल एस्पेक्ट उठा लो, जोग्राफिकली वी आर लैंड, लैंड जिसकी लैंड इज कनेक्टिंग, रिवर्स आर गोइंग थ्रू, सेम रिवर का हम पानी यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हिमालयस में कुछ नेपाल में है कुछ इशू है, उसका इफेक्ट हमारी रिवर्स पे भी आता है जोग्राफिकली, है ना? तो ऑल दीज थिंग्स, अब हमारा ओशियन है, जोग्राफिकल फैक्टर है, श्रीलंका का हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे जोग्राफिकल हिंट वहां से लो, सोसाइटल हिंट लो, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ले लो और डालो बॉर्डर मैनेजमेंट में। सिमिलरली पॉलिटिकल ले लो, इंटरनेशनल IR ले लो बॉर्डर मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाओगे आंसर को। कोई भी GS का क्वेश्चन है, आपको हर GS के हिसाब से देखना है। GS1 में जो जो टॉपिक्स हैं वो याद करो, उनको गो थ्रू करो, GS2 के जो जो टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू करो, GS3 के, GS4 के, आपका ऑटोमेटिकली आंसर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपका ना एक और फायदा होगा कि आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग, आप GS2 में आप सिर्फ GS2 की बातें नहीं कर रहे हो, अभी आप GS1 2 3 4 की बातें कर रहे हो, आपके पास कितना कंटेंट हो गया, इमेजिन, यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट नाउ। वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेस, हाँ, वैल्यू एडिशन आई वांटेड टू टेल यू, देयर आर, एक तो UN की वेबसाइट है, UN पे ना देयर आर, आप उसका वो खोलोगे डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पे स्मार्ट गवर्नेंस है, स्मार्ट पॉलिसीज है, जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज अभी तक यूज कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। जैसे आपका सिंगापुर में ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बॉडी है ना? इंडिया में है नहीं ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी, बट इट्स अ प्रपोजल कि ऐसा बॉडी होगा तो इट विल मेक थिंग्स बेटर। सिमिलरली जापान में डिजास्टर मैनेजमेंट का काफी अच्छा इंतजाम है ना? काफी अच्छे स्टेप्स दे हैव टेकन विच वी कैन अडॉप्ट। तो फिर ये सब चीजें हैं जो कि उसमें स्मार्ट गवर्नेंस या गुड पॉलिसीज से एक वो है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट वैल्यू एडिशन में। और आपकी जो कमीशन की रिपोर्ट्स होती है ना, ARC की रिपोर्ट्स, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई, ठीक है, सिमिलरली आपका नीति आयोग में भी आपके गुड गुड स्टेप्स टेकन, समथिंग लाइक दैट, एक डॉक्यूमेंट होता है नीति आयोग हमेशा रिलीज करता है, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है उनके पास एक डॉक्यूमेंट। और और क्या है नीति आयोग में, एक्शन प्लान है नीति आयोग का, एक्शन प्लान। और ये जो गवर्नमेंट के आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। मैंने क्या किया था, 3 ईयर एजेंडा और ये सब जो नीति आयोग के जो होते थे, मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखती थी। तो फिर दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, अपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ और उधर की डॉक्यूमेंट्स, सब मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे एक बार सर्च कर लो, आपको 2 4 दिन लगेंगे। आपको ये सब मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके गुड उसका डॉक्यूमेंट्स उसको डाउनलोड करो और उससे 2 4 चीज़ें लिख लो, 2 to 3 थिंग्स भी आप लिखोगे, इट विल बेनिफिट यू। ठीक है। विद द बुक क्लोज इट इज वेरी, विद द बुक क्लोज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द कंटेंट। हाँ, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू ना, जब आप बुक को क्लोज करके रखते हैं, राइट, तो आपको रिकॉल नहीं कर पाते हो, इट इज गोइंग टू किल योर टाइम, बट इट्स एन एक्सरसाइज। जैसे आप जब जिम जाते हो,
ठीक है? जिम आप जाते हो तो सीधा 25 किलो का डंबल तो नहीं उठाते हैं, 5 किलो से स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 से, है ना? और धीरे-धीरे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। जब आपकी जो पुरानी मसल्स होती है वो ब्रेक होती है, तो न्यू मसल्स डेवलप होती है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ यू ग्रो योर मसल्स, राइट? तो आपको ब्रेन के साथ भी क्या ये सेम करना होता है। ब्रेन के भी मसल्स होते हैं, है ना? ब्रेन की भी वायरिंग होती है ना, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होता है, यू हैव टू फर्स्ट ट्राई। 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया चीज़ याद करने में, आई एम टेलिंग यू वेस्ट इट। स्टार्टिंग में 1 घंटा वेस्ट करो, मत देखो बुक को, 1 घंटे के बाद देखो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम लगेगा डेफिनिटली, कोई भी चीज़, बिकॉज़ योर मेमोरी का जो वायरिंग है इट इज़ नाउ बीइंग स्ट्रेंथेन्ड ना, दिस इज़ हाउ यू व्हाट यू हैव टू डू। स्ट्रीमलाइन माइंड प्रिपरेशन, you are not able to see. Sometimes it happens that when we are doing the self study it is difficult to remember. See, you have to find your own hack. हर इंसान का एक लर्निंग का कर्व होता है, हर इंसान के एक लर्निंग का वे होता है। किसी किसी को लिख के याद होता है, मुझे कभी लिख के याद नहीं होता था। मुझे हमेशा मैं हमेशा ना चीज़ें पढ़ती थी, जैसे मैं टॉपर्स की कॉपीज आई एम टेलिंग यू, तो मैं टॉपर्स की कॉपीज पढ़ती थी, सिर्फ उसी से मुझे याद होता था। कुछ लोगों को लिख के याद होता है, कुछ लोगों को टेस्ट दे के याद होता है ना? कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर तभी आपको याद हो पाएगा। तो यू हैव टू, आपको कितना भी टाइम हुआ, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, मोर और लेस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। आप आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि यू हैव टू डू एंड यू शुड नॉट डू। एंड जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, जो आपको रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा नहीं आपको ध्यान, मतलब कि सबके, अगर आप 4 लोगों के टॉपर्स की वीडियोस देख लोगे, ले दे के आपको पता चल जाएगा रिसोर्सेज वही है इर्द गिर्द, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन जो मैंने आपको बताया, नीति आयोग का पढ़ो, एआरसी पढ़ो, उससे भी अगर आप पढ़ लोगे तो इट विल बी एनफ। उसके अलावा यूएन की वेबसाइट पे चले जाना, यूएन की वेबसाइट पे गुड प्रैक्टिसेस जो होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके आप कुछ कुछ आइडियाज कर सकते हो। और फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ऑल दीज जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे अच्छे, नीति आयोग का 5 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर एक्शन प्लान, विजन जो है अभी भारत का आया ना, डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स जो आपके हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, बस उनको पढ़ो और कुछ नहीं, और किसी में वैल्यू एडिशन नहीं है। अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करके रखो, हमेशा इंटीग्रेट करके रखो अपने नोट्स को, ठीक है? ऐसे बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है कि 4 जगह आपके नोट्स हैं, कोशिश करो एक ही जगह पे आपके नोट्स रहें, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, you can put, I'm reading the comments. Otherwise you can connect with me on my Instagram is there, Nisha Vidyarthi. You can search and connect with me. Apart from that, you can mail me also. If you are having any query, you can just send me a mail on my email ID, ठीक है? In whatsoever way you want me to help you, I can help you. Short notes for everything I study. Short notes for everything, see there are two stages of notes. एक होता है जो आप बुक पढ़ते हो, ठीक है? जैसे कुछ बुक्स में आप वही नोट्स बना लेते हो, जैसे स्पेक्ट्रम में मैं वही नोट्स बनाती थी। बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू टू इंटीग्रेट नोट्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने। जहाँ आपने एक जगह पे बनाया हुआ है उसी में नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट में जब आप अपना पेपर लिखने के लिए जब आप बैठते हो ना, जब आई विल टेल यू, देयर आर ओनली 2-3 पेजेस हुआ करते थे मेरे पास, जो मेरे बहुत क्रिस्प नोट थे, जिनमें मैं सिर्फ एक वर्ड लिखा होता था और एक टॉपिक क्लियर हो जाता था। लाइक इतने छोटे छोटे नोट्स होते हैं, वो नोट्स होते हैं तब यूज करते हो आप, जब आप बिल्कुल गेट के बाहर खड़े होते हो ना और आपका पेपर होता है मेंस का, तब आप वो नोट्स रिवाइज करते हो। तो उन क्रिस्प नोट्स तक पहुंचने के लिए आपको उससे इतने बिग आपका जो रिसोर्सेज होगा उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो आपको अपना यूज करना है मॉक्स वगैरह में, ठीक है? शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, नॉट फॉर एवरीथिंग, यू आर आस्किंग फॉर एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग, यू विल मेक नोट फॉर फ्यू थिंग्स। एंड और उसके भी शॉर्ट के भी शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे वंस यू आर डन विद दोज शॉर्ट नोट्स। इफेक्टिव रिकॉल के लिए शॉर्ट नोट्स, सी शॉर्ट नोट्स आपको ना ऐसे हेल्प नहीं करते हैं कि आपने नोट्स बना लिए तो आपको याद रहेगा। आपको नोट्स तब हेल्प करते हैं जब आपका फंडामेंटल क्लियर है। जैसे कि अगर मैंने एआरसी लिया, एथिक्स एंड गवर्नेंस लिया, मैंने उसमें कन्फ्यूशियस का एक स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है? कन्फ्यूशियस का एक स्टेटमेंट सपोज मैंने डाला कि गवर्नमेंट समथिंग समथिंग 2 लाइनर स्टेटमेंट डाला मैंने, ठीक है? अब मैं शॉर्ट नोट में वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख सकती हूँ, आई जस्ट हैव टू राइट व्हाट, कन्फ्यूशियस, ताकि मुझे याद आ जाएगा, हाँ कन्फ्यूशियस ने कुछ कहा था, मुझे याद है वो चीज़। तो हाउ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हेल्प यू, दे विल हेल्प यू व्हेन यू हैव
प्रॉपरली स्टडीड एंड हैव रिमेंबर्ड योर प्रॉपर नोट्स। जब आप प्रॉपर वाले नोट्स को अच्छे से याद कर लेते हो फिर शॉर्ट नोट्स आते हैं पिक्चर में, ताकि आप लिख सको कि अच्छा कन्फ्यूशियस आपने लिखा आपको याद आ गया, आपको एसडीजी के गोल्स लिखे आपने सिर्फ एसडीजी लिखा आपको याद आ गया, है ना, गांधी लिखा आपने सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज में आपको याद आ गया कि क्या था। दैट इज फॉर रिकॉलिंग, इट इज नॉट योर कंटेंट। एम, हाँ ठीक है, आई अंडर सम पीपल आर सेइंग दैट गाइड करने के लिए कोई नहीं है। सी टुडे इंटरनेट इज सच अ पावरफुल थिंग कि यू विल यू कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, यू कैन वॉच लॉट ऑफ वीडियोस। मैंने भी कोई किसी से ऐसे गाइडेंस में मैंने नहीं पढ़ाई की है, मेरा ऑप्शनल डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि मैंने ऑप्शनल पबेट जो है वो जो मेरे सर थे आशुतोष आशुतोष सर उनसे मैंने पढ़ा था, उनके अलावा आई डोंट थिंक आई कुड हैव मेक I have could have scored good marks in PubEd without his guidance. But जो जनरल स्टडीज था आई हैव रियली नॉट टेकन एनी गाइडेंस। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके यूट्यूब पे इंटरनेट पे ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ट्राई टू डू सेल्फ स्टडी, यू विल मेक इट। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव addressed. If anyone wants to ask anything else you can just let me know. It was actually very I'm very happy that you are there and listening to this video, because it all wherever we are preparing it happens that we go through the preparation, we apply some things, we don't apply some things, sometimes we forget things, but हमें हमेशा लगता है कि what we couldn't do we can tell others to do, right? हमेशा मुझे भी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई अगर मैं वो किसी को बताऊं और वो करे, और अगर he or she can do much better than me, then I will be very happy. So this in this session also I'm feeling like maybe I could have done even better, maybe would have topped UPSC, I don't know. But I really feel that if something has helped you and you top someday, so it would be really very happy moment for me. How to write effective answer with bullet points and flowchart. Okay. Optional, Lukman, Pavan, Prodigy, all these word institutes are good. ठीक है, आप यू आर आस्किंग, हाँ आपका क्लियर हो जाएगा, पबेड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 मंथ्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इफेक्टिव, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, एक आपका ईयरली ना आपको हमेशा अपना एक शेड्यूल बनाकर रखना है कि जब आप जून से स्टार्ट करते हो तो 3 महीने आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी आपका लक्ष्मीकांत ये सब चीज़ें खत्म करनी है, एक शेड्यूल वाइज चलना है आपको। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग पे करना है, सितंबर भी छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको फुल मेंस वाला आंसर राइटिंग करना है। फिर आपका जनवरी फरवरी में आपको अपना ये खत्म कर देना है, ऑप्शनल सब कुछ खत्म करना है। फिर आपको फेब से आपको पूरा आपके प्रीलिम्स तक आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ये आप बाकी यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसको जैसा सूट करता है वैसे करो, बट यू हैव टू हैव दिस स्ट्रेटेजी। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट ईयरली स्ट्रेटेजी इट विल बी अ वेरी मच डिजास्टर, बिकॉज यू विल लैग, ऐसे ड्रैग होता जाएगा आपका सिलेबस, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, आंसर राइटिंग शुरू ही नहीं किए। जैसे ही आपका आपका टाइम फिक्स होता है, टारगेट 15 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा सिलेबस, जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट फेज पे जाओ, आंसर राइटिंग पे चले जाओ। ठीक है, बाकी ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव रेड 2 थिंग्स विच ऑलवेज हेल्प्ड मी, कि पेन ऑफ हार्ड वर्क जो होता है, या तो फिर आप वो बियर करो, या फिर पेन ऑफ रिग्रेट, एंड पेन ऑफ रिग्रेट इज ऑलवेज मोर पेनफुल देन पेन ऑफ हार्ड वर्क, बिलीव मी, है ना। जो टाइम निकल जाएगा, इफ यू आर नॉट एबल टू जो टाइम निकल के अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो जो रिग्रेट होता है, जो गिल्ट होता है, इट दैट इज मच मोर पेनफुल एंड सफरिंग, that suffering is actually much more painful than the pain of hard work and pain of discipline, right? And another thing is, always remember, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, कि अपने जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो ना, वहाँ पे अपना कुछ गोल एक कुछ होना चाहिए। किसी को अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन आता है, किसी को अपने जॉब का कुछ आपने सोचा हो उससे मोटिवेशन आता है। तो एक एक चीज़ है कि ना, जो लोग
टॉप 10 में होते हैं ना, यूपीएससी के टॉप 10 में जो स्कोर करते हैं उनको विद पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ उनको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ उनको डिनर या लंच पे बुलाया जाता है, ऐसा देयर इज अ प्रोटोकॉल और समथिंग, समथिंग इज लाइक दैट। तो फिर मैं अपने टेबल पे ऐसा नोट बनाकर रखती थी कि लंच विद प्रेसिडेंट टू मोटिवेट मी, है ना। तो सिमिलरली देयर इज वन मोर थिंग which I two three things are there which I always used to keep in my mind that जो आपके सेकंड्स होते हैं ना एवरीडे, जो आपके एवरीडे सेकंड्स आपको कुछ मिलते हैं, दोज आर लाइक चिप्स, है ना, दोज आर लाइक योर मनी। आप उसको ये समझो वो कॉइन्स हैं आपके, और आप उनको कहीं जहाँ कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। अगर आपने उनको यूज नहीं किया तो दे आर गोइंग टू बी वैनिश्ड, वो वेस्ट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। अगर आपको अभी मैं 100 रुपए दूँ और मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 1 घंटा है इसको खर्च करने का, आप वो खर्च करोगे ना अपने बेस्ट चीज लेने में खर्च करोगे, या नहीं खर्च करोगे कि ऐसे वेस्ट कर दोगे कि नहीं खर्च किया, क्योंकि 1 घंटे बाद वो वैनिश हो जाएंगे, है ना। तो यू विल डेफिनेटली यूज टू, आप यू विल बाय द फेवरेट थिंग ऑफ योर्स ना। सिमिलरली आपका ये जो टाइम है ये आपकी कॉइन्स की तरह है। बाय योर फेवरेट थिंग फ्रॉम योर कॉइन्स कॉल्ड टाइम, ठीक है। इन कॉइन्स से अपना फेवरेट थिंग खरीदो, उसको वेस्ट मत करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिसअपियर, दिस टाइम इज गोइंग टू डिसअपियर, इट विल नेवर कम बैक टू यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अपनी फेवरेट चीज लेना है। आपकी फेवरेट चीज क्या है, आपका यूपीएससी। अभी आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज यूपीएससी। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई वॉन्टेड टू दिस ऑल। आई नो दैट इवन वेन आई विल फिनिश दिस सेशन आई स्टिल हैव फ्यू थिंग्स। अच्छा, मुझे ये भी बताना चाहिए था, वो भी बताना चाहिए था, because 4 years I have given, it has given me lot of things, right? So I can not just end ki हाँ हो गया, I can give lecture how to keep calm, and sometimes she runs it. Definitely you will feel very uncertain with respect to future, you will feel demotivated. That is why I'm telling you, you have to have one two three things in mind ना। दो चार चीजें अपना गोल ऐसे रखो कि ये करना है, ये नहीं हुआ तो मैं इस जन्म में नहीं हो पाएगा संतुष्टि, है ना। ये इस तरीके से आपको एक दो चीज रखनी है अपने माइंड में, कि अपने टेबल पे नोट बना कर रखो। मैं अपने मेरे बेड की दीवार पे भी मैं ये सब चीजें लिखती थी, डिसिप्लिन, truthfulness, honesty, hard work, all these keywords I used to put in my bed। जब भी मैं whenever I used to wake up I used to see those keywords। तो कुछ ना कुछ आपको रखना है मोटिवेट करने के लिए, कोई एक इंसान भी रख लो अपने साथ जो आपको जब आप डाउन फील करो तो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, ठीक है, दिस इज मोर और लेस योर स्ट्रेटेजी विच यू आर गोइंग टू फॉलो। इसके अलावा इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट विद रिस्पेक्ट टू योर इंडिविजुअल प्रिपरेशन, यू कैन डेफिनेटली पिंग मी। I am, even if you search my name you will get my social media and my email वगैरह for you to get connected। And I will tell you, being in government, because it's been some time for me, 1 year मुझे होने वाला है in government, तो I can tell you what is there। it's a very beautiful place। यू विल नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग यू हैव थॉट। आप लोगों ने अभी जो सोचा होगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब कुछ आप नहीं कर पाओगे, देर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट स्टिल देर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। इन रिस्ट्रिक्शन ओनली यू आर एबल टू एंजॉय द फ्रीडम। ठीक है, तो फिर ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, प्रिपेयर फॉर योर जर्नी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, you can ask anything you want to ask with respect to your individual query to me, and it was great interacting with you and addressing your questions। ठीक है, I will end the session here। Have a good night, have a good night sleep। Thank you, thank you।